Good morning, class. How are you? I hope you are well with your family members. I am Atul Tiwari, chemistry lecturer, Bhani Devi Goyal Inter College. Today I will discuss about the chapter first, basic concept of chemistry. This is the first chapter of chemistry for 11th standard. In this chapter there are so many techniques and concept of chemistry, mainly basic concept. chemistry के basic concept यहाँ दिए गए हैं. Today I will study about these topics. Now the first topic in this chapter is law of chemical combinations. Now let us start the topic. Law of chemical combination. There are 5 laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass, proposed by Lomonosov, or some writers wrote that Lavoisier is the scientist who proposed the law of conservation of mass. This is the years in which he worked on this law. Law of constant proportion by Proust, 1799. Law of multiple proportion by Dalton. Law of reciprocal proportion by Richard. Law of gaseous volumes by Gay-Lussac. These are the basic law of the chemical combination. So we study the first law of conservation of mass. Today I will start the law of conservation of mass proposed by Lavoisier or Lomonosov. Please note down these laws with their respective scientists. Let's start. Now the first law of chemical combination, law of conservation of mass, proposed by Lomonosov 1748 and Lavoisier 1774. According to this law, this is the first law of chemical combination. According to this law, matter can neither be created, मतलब कोई भी जो मैटर होता है वो क्रिएट नहीं हो सकता, nor destroyed, but one form of matter can be converted into other. सीधा मीनिंग इसका है, मैं समझा देता हूं आप लोगों को. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो कोई मैटर क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर. दिस लॉ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, यानी अविनाशिता बोलते हैं जिसको, जो नष्ट नहीं होता है. दिस लॉ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर. द्रव्य की अविनाशिता बोलते हैं इसको हम बोलते हैं द्रव्य की अविनाशिता. मतलब जो मैटर होता है वो अविनाशी होता है, विनाश नहीं होता उसका, वो नष्ट नहीं होता है. इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में भी इसको कुछ कह सकते हैं. अगर सपोज दैट ये डेफिनेशन मेरी मिस हो रही है तो हम अल्टरनेट डेफिनेशन तैयार करके रखें. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, कि सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट. मतलब कोई भी फिजिकल हो या केमिकल चेंज हो, जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है. ये इस पूरे लॉ का बेसिक कंक्लूजन है. तो इसको हम लोग समझ लें. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल combination proposed by Lomonosov. There are two scientists, Lomonosov 1748
and Lavoisier 1774. According to this law, matter can neither be created nor destroyed, but one form of matter can be converted into other. This law also known as law of indestructibility, अविनाशिता of matter. ठीक है, इसको जो है indestructibility बोलते हैं, इसे द्रव्य की अविनाशिता बोलते हैं. मैटर मीन्स होता द्रव्य. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में वी कैन से इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स. मतलब जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो किसी भी केमिकल और फिजिकल चेंज में रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है. चलिए अभी हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा, अब इसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं. चलिए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं. चलिए आइए, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Here a reaction is written by me. The calcium carbonate is decomposed by heating and gives calcium oxide and carbon dioxide. This is the simple reaction which shows the decomposition of calcium carbonate by the effect of temperature. In this reaction we can see the molecular weight of calcium carbonate is 100 because the atomic weight of calcium is 40, carbon is 12 and oxygen is 16 into 3 48, 12, 60 and 40, 100. Total molecular mass of calcium carbonate is 100. And here the calcium oxide, the atomic weight of calcium is 40, atomic weight of oxygen is 16, 14 and 16 is equal to 56. The molecular mass of carbon dioxide is 44. The total of both product, these are products and this is reactant. Reactants are those which written in the reaction behind the arrow, and front of arrow V shows the product of reaction. तो in this reaction, इस reaction में ये लोग जो है प्रोडक्ट हैं और ये जो है रिएक्टेंट है, और जो रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो जो है 100 है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो another product. The molecular mass of calcium oxide is 56, molecular mass of carbon dioxide is 44. Total mass of both product calcium oxide and carbon dioxide is 100. So we can see mass of reactant is equal to mass of product. This is the law of conservation of mass. मतलब किसी भी केमिकल हो या फिजिकल चेंज हो, जो टोटल मास है वो कभी लॉस में नहीं जाता है. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो जाता है. वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म या अदर फॉर्म. ठीक है, तो यही मैं देख रहा हूं कि जो मास है कैल्शियम कार्बोनेट का वो अनदर दूसरे फॉर्म में बदल गया है, लेकिन जो मास है वो टोटल फिक्स है. ये 100 है, इनका टोटल भी 100 होगा. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय लोमोनोसोव एंड लेवोसियर. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Now we discuss about the second law of chemical combination. The second law of chemical combination is a law of constant proportion proposed by
प्राउस्ट 1799। इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब स्थिर अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार सीधे बोल दें आपको तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसमें जो एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है, चाहे वो केमिकल कंपाउंड कहीं से भी ऑब्टेन किया जाए, किसी भी सोर्स से लिया जाए, किसी भी मेथड से उसको प्रिपेयर किया जाए या कहीं से भी उसको लिया जाए, तो उसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशो होता है ना, प्रोपोर्शन होता है, वो फिक्स रहता है बाय मास। यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स the same elements combined together in the constant proportion by mass. In other words, we can say a compound always contains exactly the same proportion of elements by mass. मतलब कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे उसको कहीं से भी ऑब्टेन किया जाए। जैसे भी can prepare the carbon dioxide by following method। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम लोग CO2 को हम कई मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज CaCO3 on heating या by heating CaCO3 gives CaO and CO2. This is carbon dioxide. And second method is carbon burn with oxygen and gives CO2. And NaHCO3, this is the sodium bicarbonate, heat up and gives Na2CO3, H2O and CO2. There are many methods to prepare the carbon dioxide by the chemical reaction. In this reaction we can find CO2 in this reaction also, and this is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. This reaction also gives a carbon dioxide. आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्राप्त करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो रेशो है, एलिमेंट्स का जो रेशो है वो फिक्स रहेगा बाय मास, अकॉर्डिंग टू मास। ठीक है, कैसे? जैसे आप देखें कि आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें क्या रेशो रहता है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12 और एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड 16 इंटू 2 32। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है 12:32 है। ठीक है, अगर इसको डिवाइड कर दें, हम 4 से डिवाइड कर दें तो इधर 3 आ जाएगा और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो जो रियल रेशो निकल के आएगा वो 3:8 हो जाएगा। आप पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से भी हम फाइंड आउट करें, कहीं से भी लें, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 3:8 होगा बाय मास। उसमें भारात्मक जो अनुपात होता है, रेशो बाय मास कहें, वो 3:8 होगा। चाहे आप इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर हमारी ब्रीथिंग के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को आप बनाएं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, रेशो बाय मास, वो 3:8 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशो है बाय मास वो कांस्टेंट रहता है।
आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को किसी भी मेथड से, किसी भी टेक्निक से प्रिपेयर करें, उसमें जो एलिमेंट्स का जो रेशो होगा वो फिक्स रहता है। इसी को कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, कि उनके प्रोपोर्शन में स्थिर रहता है उनका प्रोपोर्शन, और वो भारात्मक स्थिर होते हैं, भार के अनुसार स्थिर रहते हैं। कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो भारात्मक अनुपात है वो 3:8 3:8 ही रहेगा। वो किसी भी मेथड से आप कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड आउट करें, दैट इज